Hello student, a very good morning to you all. Vinita Singh again welcomed you to our YouTube channel of online classes. Here I am presenting a diagram to you. This diagram is of plant cell. You have seen the plant, but you never have seen the plant cell. In our previous video I have told you that the cells differ in size and shapes. The basic internal structure of all the cells is the same, but the function, or you can say that they are not identical. A typical cell is made up of three basic parts that I have already told you in our previous video, that was the cell membrane, cytoplasm and nucleus. So in today's video I will explain you about the plant cell. You can see all these are the organelles that are mentioned in this video. All these that I have mentioned, these all are the cell organelles that you can see in the plant cell. This diagram depicts a plant cell. This is the outer boundary that I have colored in green. This is the cell wall. This is the cell wall. Okay students, the next comes to, this is the cell membrane. This is your cell membrane of plant. It is a very thin. It allows or permits the cell contents, or it separates the cell content from the surrounding of the, it doesn't, from this cell membrane all these organelles doesn't get out from the plant cell. Okay student, the next is Golgi apparatus, vacuole membrane. Firstly have a look on all these organelles. I'll tell you one by one their name. After that I'll explain it to you. This is the Golgi apparatus. This 1, 2, 3, 4. I have drawn here 4 chloroplasts. This, the whole large part that is vacant, having only 2 items or having 2 organelles, that is the वैक्यूल मेम्ब्रेन. ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका वैक्यूल मेम्ब्रेन है. The next is, this is your vacuole membrane, the outer lining. Okay student, this whole part is known as the large central vacuole. Okay, this is the vacuole membrane. This is your chloroplast. The lining, here you can see a bar जिसे आप क्या कहेंगे, graphite crystal, and this is your Druce crystal. This is, that is in pink color, it is mitochondria. The green part you can see here, these all the green vacant part is your cytoplasm, that is of jelly like. The small balls that we call them ribosomes. This is your Golgi vesicles. These all here, and these both are small smooth endoplasmic reticulum. ER depict to the endoplasmic reticulum. These are smooth. Why? Because they don't have ribosomes. इनके पास ribosomes नहीं है. ये small parts जिसे आप ये सर्कल सा जो देख रहे हैं, these we call ribosomes. This is your nucleolus, and this, the whole part is nucleus. This is your rough endoplasmic reticulum, because they are having the ribosomes. I have told it. This is the large central vacuole. This is your amyplast, which contain the starch grain, Okay students, so I have told you all these, but one by one I'll little bit explain to you. Students, this is your ribosomes.
व्हाट इज़ राइबोसोम्स, क्या होते हैं ये? बिल्कुल मिनट स्फेरिकल ग्रेन्यूल होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्रीली होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करने के लिए फ्री होते हैं। एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज, ये क्या करते हैं? प्रोटीन को, जो आपके प्लांट के अंदर जितना भी प्रोटीन होता है उसको सिंथेसाइज करने के लिए ये हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ योर गोल्जी वेसिकल। और गोल्जी वेसिकल्स का क्या वर्क होता है? मीन्स गोल्जी बॉडीज जो होते हैं आपके, वो छोटे छोटे से, ये आप देख सकते हो, ये गोल्जी वेसिकल्स हैं एंड दीज आर योर गोल्जी एपरेटस। इनका क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट? ये आपके स्मॉल होलो कप शेप और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मोस्टली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। और गोल्जी एपरेटस जो होते हैं वो आपके प्लांट सेल में, स्टार्टिंग का नेम सेम होता है बट जो इनका लास्ट पार्ट होता है दैट इज़ गोल्जी एपरेटस एंड गोल्जी बॉडीज़, ये डिफरेंट होता है। एपरेटस प्लांट सेल में होते हैं एंड गोल्जी बॉडीज़ एनिमल सेल में होते हैं। ओके स्टूडेंट, द न्यूक्लियस, आपको पता है न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके किसी भी प्लांट और एनिमल में, और स्फेरिकल होता है और ओवल शेप में होता है। ये जितने भी मोस्ट ऑफ द फंक्शंस होते हैं, मेन फंक्शन को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का ही होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होते हैं, वेदर वो रफ हो या फिर स्मूथ, ये एक ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो कि क्या करते हैं, आपके प्लांट सेल में से कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ओके, देन ये एमिलोप्लास्ट हैं। आई हैव टोल्ड यू दैट दिस कंटेन ओनली द स्टार्च ग्रेन, जितना भी स्टार्च होता है वो कंटेन करता है। दिस इज़ योर सेल वॉल, इसका मेन फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? जो सेल वॉल होता है इसका फंक्शन मेन ये होता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रिजिड लेयर होती है, ये आपकी सेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन एंड हेमीसेलुलोज से बनी हुई होती है। एंड इट डजेंट अलाउ द, ये क्या करती है, आपके जितने भी इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इनको बाहर जाने के लिए परमिट नहीं करती है। एंड प्लस में क्या करती है, जितने भी मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं उनको फिल्टर करके तब ये इनसाइड और आउटसाइड सेंड करती है। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज़ योर सेल मेम्ब्रेन। आई हैव टोल्ड इट, द सेल मेम्ब्रेन जो होता है आउटर लेयर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं हम। एंड ये सेपरेट करता है हमारे सेल कंटेंट्स को और सेल वॉल के, मतलब बाहर का जो यहाँ का पोर्शन होता है इसको इससे सेपरेट करता है और ये बाहर जाने को अलाउ नहीं करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका गोल्जी एपरेटस का मैंने बता दिया, होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। वैक्यूल मेम्ब्रेन, ये आपका जो वैक्यूल का कंटेंट होता है इसको सेपरेट करने के लिए होता है। वैक्यूल जितना भी प्लांट सेल में वैकेंट पार्ट होता है वो वैक्यूल कंट्रोल करता है, मीन्स वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड ये मेन फंक्शन क्या करते हैं, फूड सिंथेसाइज में और फोटोसिंथेसिस के टाइम पर हेल्पफुल होते हैं। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट ये दो पार्ट्स होते हैं जो आपके वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है आपका फूड फैक्ट्री भी इसको बोलते हैं। ये क्या करती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पावर हाउस भी इन्हें कहा जाता है बिकॉज जितनी भी एनर्जी रेस्पिरेशन के टाइम पर रिलीज़ होती है वो सारी इन्हीं के पास स्टोर होती है। एंड साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया है, ये जितना भी होलो स्ट्रक्चर, सॉरी ग्रीन जेली लाइक स्ट्रक्चर है ये सारा है। वंस अगेन हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम, दिस इज़ द diagram of plant cells students. I hope the videos will be clear to you. You have to draw and learn it. Have a good day students. A very good morning student. I Priyanka Yadav. Today I tell you some basic questions of GK. Here some basic questions of GK are given. You have to prepare that questions for your GK quiz which will be held on June month. Okay. Here our first question is, what is the name of the highest mountain peak? Answer is Mount Everest. Our next question is, what is the largest island of the world? Island क्या होते हैं, जो सी के अंदर बीच में जो लैंड होती है ना उसको आइलैंड बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है टापू। आंसर इज ग्रीनलैंड। Our next question is, which is the largest bridge of the world?
लार्जेस्ट ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? ब्रिज का मतलब होता है बांध। आंसर है ओकलैंड ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? लार्जेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की? नील। और इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड? आंसर इज पेंटागन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड? डीपेस्ट का मतलब क्या होता है? जो सबसे गहरा होता है। आंसर इज पैसिफिक ओशियन। यू नो 5 ओशियंस, देन देयर वन इज पैसिफिक ओशियन। व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड? आंसर इज गोल गुम्बज, दैट इज द आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट बेल ऑफ द वर्ल्ड? लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ी बेल कौन सी वर्ल्ड की? द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द बिगेस्ट पार्क ऑफ द वर्ल्ड? बिगेस्ट पार्क कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है? यूएसए में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड? डीपेस्ट का मतलब अभी बताया था मैंने, सबसे गहरा। सबसे गहरी लेक का मतलब क्या होता है? झील। झील कौन सी है? बैकल लेक। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड? जो ब्यूटीफुल हैंड मीन्स जिसकी राइटिंग बहुत ही सुंदर हो, उसको क्या बोलते हैं? कैलियोग्राफिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन हु स्टडीज इन नेचर कॉजेस एंड प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स? वस्तुओं के नियम। आंसर इज फिलोसफर। क्या होता है वो? फिलोसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडी coins and medals is called? Answer is numismatist. Next is a person who studies about the earth atmosphere. Atmosphere क्या होता है? वातावरण। धरती का जो वातावरण होता है वो, और इसमें जो चेंजेस होते हैं उनकी स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट। और लास्ट क्वेश्चन इज कोटेशन आराम हराम है इज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये किसने दी थी कोटेशन? पंडित जवाहरलाल नेहरू में। डियर स्टूडेंट, वी कवर अवर 30 questions. In previous video we study 15 question. In this video we also study 15. Then we cover 15 basic questions. So you have to learn and write in your notebook all these questions. Okay. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है परिभाषाएं, और इसमें आज हम करेंगे वर्ण तथा स्वर। तो सबसे पहले आपका वर्ण। कल हमने 2 प्रश्न किए थे। कौन कौन से? एक तो भाषा की परिभाषा और उसके भेद, दूसरा व्याकरण, तो व्याकरण की परिभाषा और उसके भेद। आज हमारे हैं वर्ण की परिभाषा तथा वर्णों के भेद। तो है वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? वर्ण किसे कहते हैं तथा हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? तो वर्ण क्या है बेटा? भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सके, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड यानी टुकड़े, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण कहलाती है। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम और खंड नहीं कर सकते और टुकड़े नहीं कर सकते, वो है आपकी वर्ण। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? हम अक्षर भी कहते हैं। जैसे वर्ण है आपके ए, आ, ई, बड़ी, यानी जितने भी वर्ण हैं वो सभी क, ख, ग, च, छ, ज, ये सभी किसमें आते हैं? वर्ण। यानी कि वो सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, यानी हम उसको और खंडों में नहीं बांट सकते, वो क्या है? आपके वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके
खंड नहीं किए जा सकते या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। और जैसे वर्ण में आ गया आपका ए आ ई, ऐसे नहीं है कि बेटा सिर्फ यही है क्योंकि आदि लगा, इनके अलावा सभी सारे स्वर सभी वर्ण किसके अंदर आते हैं, इसी में आते हैं। अब है हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। हमने पूछा कि हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वर और दूसरे व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर कितने हैं बेटा? स्वरों की संख्या है 11 और व्यंजन हैं जिनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। वैसे 33 व्यंजन हैं, लेकिन स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये सभी अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं। तो अब है हमारा स्वर। स्वर किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? स्वर किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं? अब स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट से, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकले उन्हें स्वर कहते हैं। क्या? एक बार फिर से देखो कि जिन वर्णों के उच्चारण में, कि जिन वर्णों को हम बोलते हैं, बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के मुंह से निकले उन्हें कहते हैं हम स्वर। या फिर इसकी ये भी परिभाषा हो सकती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वो भी क्या कहलाते हैं? आपके स्वर कहलाते हैं। तो इसकी 2 परिभाषा हो सकती हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकले उन्हें स्वर कहते हैं, या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वो स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर कैसे हो गए आपके, कि स्वर क्या है आपके, कितने प्रकार के स्वर है? अब ये देखते हैं कि हिंदी में 11 स्वर हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। इन स्वरों को, ये जो आपके 11 स्वर है, ए आ ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ऐ ओ औ, ये आपके 11 स्वर है। तो स्वर की परिभाषा यही हो गई कि इनको जब हम बोलते हैं तो हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती, हम इनको अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। तथा जब हम इनको बोलते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। जैसे हम इस व्यंजन को बोलते हैं तो व्यंजन हमारे किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलते हैं, लेकिन इनमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती। ए आ ई, आप बोल के देखिए। तो हिंदी में 11 प्रकार के स्वर हैं। 11 स्वर हैं। कौन कौन से? ए आ ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए ऐ ओ औ, ये है हमारे 11 स्वर। तो यानी इनको बोलने में हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब है स्वर के भेद, कि स्वर के कितने भेद है। ये तो पढ़े हमने कि 11 स्वर है। देखो स्वरों की संख्या कितनी है बेटा? 11। और स्वर के भेद कितने हैं? 2। अब स्वर की 2 भेद कौन कौन से? स्वर के 2 भेद हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। कौन कौन से भेद है बेटा? एक है हर्ष स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 और स्वर के भेद कितने हैं? 2। अब है आपका हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या होता है कि यही स्वर है, हर्ष स्वर है। हर्ष स्वरों के उच्चारण में वायु बहुत कम समय लगता है, कि हर्ष स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो बोलने में बहुत कम समय लगता है। और इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? ए, ई, ऊ और री, ये 4 क्या है आपके? हर्ष स्वर है। हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ए, ई, ऊ और री, यानी इन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। फिर है आपका दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या है? जो दीर्घ स्वर हैं इनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, तो वो है आपके दीर्घ स्वर। और इनकी संख्या कितनी है बेटा? 7। कितनी है? 7। 11 हो गए। 7 दीर्घ स्वर है आपके और 4 आपके हर्ष स्वर हैं। तो हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है तथा दीर्घ स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा दोनों ही परिभाषाओं को, कि वर्ण की परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। वर्णों को अक्षर भी
कहते हैं। जैसे ए, आ, ई। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना रुकावट के मुंह से निकले उन्हें स्वर कहते हैं। या फिर स्वरों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की, जिन स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सके, वो क्या कहलाते हैं? आपके स्वर कहलाते हैं। तथा हिंदी में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। और तथा स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर में और दीर्घ स्वर में। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की संख्या है आपके 7। और ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। तो बेटा ये नोटबुक में नोट कर लेना सभी और लर्न करें। थैंक यू। Good morning students. So today our topic is perimeter and area for class 6 to 8. Previously we study about perimeters formula. Now we are going to do formulas of 2-dimensional for areas. ठीक है? So area, अब firstly perimeter क्या था? To calculate the boundary, या अगर हमें किसी भी थिंग की, अगर हमें क्या निकालनी है, उनकी पूरी लेंथ पता करनी है, मतलब बाउंड्री की, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं वहां पे? पेरीमीटर। लेकिन इन केस अगर वहां पे सरफेस भी, जैसे अगर हमारे पास इस नोटबुक का ये है और ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, अगर हमें इसका एरिया भी कैलकुलेट करना है तो एरिया में क्या हो जाएगा? ये अंदर का पार्ट भी सारा इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, पेरीमीटर में क्या होता है? सिर्फ बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक, ये बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक और ये बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कैलकुलेट करते हैं हम। लेकिन एरिया में क्या होता है? अंदर की सरफेस भी क्या हो जाता है? इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, सो नाउ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल हमें पहले ही शेप पता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस और हाइट क्या होते हैं? फर्स्टली जो देखो ट्रायंगल में हमारे पास 3 वो होते हैं, तो तीनों से हम एल्टीट्यूड डाल सकते हैं। जहां पे 90 डिग्री एंगल दिखे वो हमारे पास होता है हाइट। ठीक है, और जिस साइड पे वो परपेंडिकुलर है वो क्या होता है? बेस। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इन अगर हमारे पास इस वर्टेक्स से नाउ हमारे पास 3 वर्टेक्स है। इन केस इस वर्टेक्स से हमने अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करा तो हाइट क्या हो गई? अब हमारे पास दिस वन विल बी द हाइट एंड बेस क्या होगा? जिस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा इस केस में? ये। ठीक है, नाउ सेम अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलेटरल वर्ड क्या था? जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है और ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की जिसमें तीनों साइड इक्वल होती है वहां पे फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? √3/4 √3/4 मल्टीप्लाई विद साइड का स्क्वायर। और साइड का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? साइड का मल्टीप्लीकेशन साइड से ही। ठीक है, इनकेस अगर साइड 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से, दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ 4। ओके, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या था हमारे पास? जिसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और हमने कंसिडर करी थी दिस विल बी लेंथ एंड दिस ऑल्सो लेंथ बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड दैट साइड विल बी breadth, so this will also breadth because opposite sides are equal. so area का फॉर्मूला क्या होता है इसका? length multiply with breadth. ठीक है, now next is area of square. square क्या था हमारे पास? जिसकी चारों साइड क्या थी? इक्वल, तो हमने उनको क्या कंसिडर कर लिया? साइड ही कंसिडर कर लिया, या ए मान सकते हैं हम उसको। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई विद साइड, या अगर हम साइड को ए मान लेते हैं तो ए मल्टीप्लाई विद ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस था हमारे पास? इसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती है, बस क्या होता है हमारे पास यहाँ पे इसके डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, D1 और D2 क्या है यहाँ पे? डायगोनल्स। और डायगोनल क्या होते हैं हमारे पास? किसी भी फिगर के अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम बोलते हैं डायगोनल्स। तो दिस विल D1 एंड दिस विल D2, ये पूरा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 D1 मल्टीप्लाई विद D2। लेकिन पेरीमीटर क्या था हमारे पास? इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो सारी साइड्स का सम, या 4 इंटू साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम था हमारे पास, पैरेललोग्राम इज
दिस, इसकी भी क्या थी हमारे पास, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो हमारे पास क्या था, बी पी। नाउ हाइट फिर से अगेन क्या होता है हमारे पास, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यहाँ पे 4 वर्टिसेस है, तो 4 वर्टिसेस से हमारे पास क्या होगा, हम हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जिस साइड पे वो परपेंडिकुलर होता है ये हाइट हो गई, और जिस साइड पे परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, बेस। इन केस अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेस क्या हो जाएगा अब हमारे पास, दिस वन, एंड हाइट विल बी दिस। ठीक है, तो एक ही हाइट कंसिडर हो सकती है, चारों हाइट भी हो सकती है, और हमें कुछ और निकालने को बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। हाइट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड जिस साइड पे परपेंडिकुलर होता है वो क्या होती है इसका बेस। नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या था हमारे पास, whose 2 sides are parallel and 2 sides are non parallel। पैरेलल मतलब क्या था, जो कभी भी एक दूसरे को कट ना करे, अगर हम उनको आगे भी एक्सटेंड करें तो भी कभी कट ना करे। ठीक है, तो यहाँ था हमारे पास B1 और B2 पैरेलल साइड्स थे, और हाइट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई इन दोनों का सम, बेस 1 और बेस 2 दोनों का सम, और हाइट से क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इन विच 2 ऑफ इट साइड आर इक्वल, एंड देखो ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती है हमारे पास, 2 साइड्स आर इक्वल। इन केस अगर ये ए है और ये ए है, तो दिस वन विल सपोज टू बी बी। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है हमारे पास एक हाइट, जैसे अब जो हम ये हाइट ड्रॉ कर रहे थे ये एल्टीट्यूड ही बोलते हैं। यहाँ से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ करा, और एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास √(a² - b² और अपॉन में 4। ए क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो 2 साइड्स इक्वल हैं उनको हमने किससे मेजर करा है, ए से, एंड बी विल बी द बेस, जो एल्टीट्यूड के लिए बेस यही होगा। ठीक है, तो b² अपॉन 4। और एल्टीट्यूड हम क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। तो बेस तो हमें पता है और हाइट हमें पता करनी, तो एल्टीट्यूड को हम हाइट ही बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, या तो एल्टीट्यूड लिख सकते हो, ठीक है, और एल्टीट्यूड का फॉर्मूला अलग से लिखते हैं ना, या एल्टीट्यूड को का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे और मल्टीप्लाई विद बेस। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई विद हाइट। बेस यहाँ पे है, एल्टीट्यूड हमने निकाला जिसका फॉर्मूला ये है, तो इसीलिए यहाँ पे दिस ये लिखा है। ठीक है, नाउ एक होता है कि हीरोन्स फॉर्मूला। अगर हमें ट्रायंगल का पता ही नहीं है कि वो क्या है, आइसोसेलेस है या हमें हाइट भी नहीं पता है उनकी, ठीक है, सिर्फ 3 साइड्स गिवन है ट्रायंगल की, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, सो उसके लिए होता है हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला, एंड दैट विल बी √(s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b एंड इंटू s माइनस c। यहाँ पे s क्या है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, और पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2, वेयर a b c आर 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सो इन केस अगर हमारे पास 3 साइड्स ही ओनली गिवन हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रायंगल का एरिया। सो दैट विल बी फॉर्मूला दैट विल बी यूज्ड। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू। Morning students, this is for 6 to 8 defines related to basic needs of English grammar. So today is first is noun. Noun. A noun is names a person, animal, place or thing, quality, idea, activity or feeling. A noun can be singular or plural. It means जो नाउन होता है, जो नाउन है किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी का भी नाम होना चाहिए, किसी क्वालिटी का नेम होना चाहिए, किसी आइडिया का नेम होना चाहिए, एक्टिविटी और फीलिंग, इमोशंस, इन सब का नाम होना चाहिए, उन्हें हम नाउन कहते हैं। और नाउन एक सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है नाउन और नाउन प्लूरल भी हो सकता है। मीन्स
singular noun or plural noun is the part of noun only. For example, please light the fire. Please light the fire. Types of noun. Types of noun are, there are 5 kinds of noun. First is proper noun. Proper noun is the name of particular place and person. जब हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या नेम बता देते हैं, पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन का नेम बताते हैं, देन वी विल कॉल दैट प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन इज़ रिलेटेड टू द कॉमन थिंग्स. लाइक कोई भी चीज़ है हमें जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं होता, कॉमनली यूज़ करते हैं, उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं. Material noun is related to the noun which represent the things. Material is used in the noun. जो भी सामान यूज़ होता है नाउन के लिए उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड चेन. गोल्ड चेन क्या है? नाउन है, प्रॉपर नाउन है. उसमें मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है? गोल्ड. तो वो क्या है? मटेरियल नाउन. Next we have collective noun. Collective noun is a name of group people. जब हम किसी भी ग्रुप की बात करते हैं, कोई भी चीज़ हमारे पास एक साथ इकट्ठी रखी हुई है, ग्रुप में रखी हुई है, कलेक्ट करके रखी हुई है, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अभी हमने इसमें पढ़ा था डिफाइन में, हमने सारी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा है, क्वालिटी के बारे में पढ़ा है, आइडिया के बारे में पढ़ा है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ रिलेटेड टू द आइडिया और फीलिंग्स और एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम इमोशंस, फीलिंग्स, किसी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. Now next we have proper pronoun. What are pronoun? A pronoun is a word that takes the place of a noun like I, you or they. For example, please light their fire. It means, देखो, जब हम नाउन में हम क्या यूज़ करते हैं? किसी भी प्लेस, एनिमल, पर्सन, थिंग्स का नाम यूज़ करते हैं और इनकी प्लेस पे जब हम आई यूज़ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें मैं एक ही वर्ड बोलती हूँ, ठीक है? डॉग. माई डॉग नेम इज़ जैकी. ओके, बार बार मैं जैकी वर्ड यूज़ नहीं करती. जैकी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जैकी इज़ वेरी स्मार्ट, जैकी वॉक्स ऑन 4 legs. तो मैं बार बार जैकी यूज़ नहीं करती, उसकी प्लेस में मैं इट या कोई और प्रोनाउन यूज़ करती हूँ. उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं. जब हम नाउन की प्लेस पे हम प्रोनाउन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू सी हेयर आई, यू और दे. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ही, शी, इट. अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के टाइप्स के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ऑन इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउ हियर वी हैव टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में हम आई यानी कि खुद का प्रयोग करते हैं. यू. सेकेंड पर्सन में हम यू यानी कि किसी सामने वाले का प्रयोग करते हैं. थर्ड होता है ही, शी, इट. इसमें थर्ड पर्सन में हम जो अन्य पर्सन होते हैं उनके लिए हम थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इंडेफिनाइट. इंडेफिनाइट प्रोनाउन में हम उन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल, वन, मैनी, समबडी. इन सब चीज़ों को जो संबोध करता है उनको हम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस कहते हैं.
सर्टेन नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, जब हम ये स्पेसिफाई कर देते हैं कि वो कितनी मात्रा में कोई भी सामान हम यूज़ कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द WH फैमिली, या हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव pronouns. Next we have relative pronouns that are used to join two sentences, यानी कि जब हम किसी दो sentences को, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किसी वर्ड का प्रयोग करते हैं, उनको हम relative pronouns कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल who, which, whose, but, etc. नेक्स्ट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव में हम 4 वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, 4 शब्दों का प्रयोग करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। इसमें हम सिंगुलर का भी यूज़ करते हैं और प्लूरल का भी यूज़ करते हैं। दिस और दैट हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, दीज और दोज हमारा प्लूरल के लिए यूज़ होता है। दिस और दीज जो हमारे नज़दीकी रखी हुई चीज़ है उसके लिए प्रयोग करेंगे, और जो हमारी दूर रखी हुई चीज़ के लिए प्रयोग करेंगे वो है दैट एंड दोज। नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव हम प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नाउन, यानी कि नाउन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि कैसे किस मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि बांटा गया है। रेसिप्रोकल में when two different pronouns show a mutual relationship, यानी कि दोनों प्रोनाउंस जो हमें एक साथ एक ही रिलेशनशिप, यानी कि दोनों ही एक ही चीज़ दिखाते हैं, तब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्सिव pronouns are those pronouns which show the effect of work upon the subject हमने कल पढ़ा था क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। उसका जब हम कोई प्रोनाउन अगर हम उसके ऊपर प्रभावित होता है सब्जेक्ट के ऊपर कि वो क्या कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी इंजॉयड आवर सेल्व्स, यानी कि इसका प्रभाव किस पे हो रहा है, वी पे। तो वी क्या है, वी के ऊपर हो रहा है, और रेसिप्रोकल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, आर सेल्व्स। ऐसे ही एम्फेथेटिक है। एम्फेथेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एम्फेसाइजिंग और बिकम्स एन एम्फेथेटिक पर्सन, जब हम किसी भी के भी बारे में बात करते हैं और जब सब्जेक्ट के बाद हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उन्हें हम एम्फेथेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई माई सेल्फ विल गो। आई क्या है, हमारा प्रोनाउन है, और इसके साथ माई सेल्फ ये हमारा क्या यूज़ हो गया, एम्फेथेटिक, क्योंकि हमने ये सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया है, इसे हम एम्फेथेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। थैंक यू। Good morning student, welcome to online classes. This is Suraj. Today student we are just going to start the spoken for today. The topic of that is health is wealth. यानी कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो वही आपकी सच्ची वेल्थ है, यानी कि सच्ची कमाई है। सो देखिए बच्चों कि हम क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे जो है लाइफ में हेल्थ की। अगर हम हेल्दी हैं तो हम स्वस्थ हैं, तो हमारी जो है वी आर एक्टिव टू डू वॉट एवर वी जस्ट नीड इन आवर लाइफ। हमारे शरीर को अगर सही है, स्वस्थ है, तो हम जो कुछ चाहते हैं लाइफ में वो अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं। सो इस चीज़ के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमें जो है अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो देयर आर सो मेनी सच थिंग्स in which we should avoid something and we should just take care of that thing.
So student, now today on the topic of health is wealth, I'm just going to tell you few things about that. So let us start and continue. Health is a great blessing. हेल्थ जो है वो भगवान का दिया हुआ एक हमारे पास उपहार है ऑफ गॉड. वी शुड टेक केयर ऑफ इट. भगवान के द्वारा दिए गए हेल्थ जो है हमारी वो धरोहर है जिसे हमें बहुत ही सावधानी से और सही तरीके से संभाल के रखना चाहिए. फॉर दिस पर्पस we should take simple and balanced diet. और इस चीज को बनाए रखने के लिए हमें बिल्कुल साधारण और सही मात्रा में खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए. We should take proper exercise and keep our bodies clean. और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सही तरीके से एक्सरसाइज अभ्यास करना चाहिए एंड और हमारे जो बॉडी है हमने शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए. वी शुड वेयर नीट एंड क्लीन ड्रेस. हमें अपने शरीर को सही दिखने के लिए साफ सुथरी और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए. ब्रश आवर टीथ. हमें अपने दांतों को सही समय पे और ठीक से साफ रखना चाहिए. वी शुड कीप आवर नेल्स क्लीन. हमें अपने नाखूनों को भी साफ रखना चाहिए. अगर हम उन्हें साफ नहीं रखेंगे तो उससे जो है भोजन करते वक्त उसकी गंदगी हमारे जो है शरीर में जा सकती है जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं. वी शुड बी रेगुलर एंड पंक्चुअल. हमें जो है जो हम अपना काम करते हैं उसमें नियमितता होनी चाहिए और हमें पंक्चुअल का भी होना चाहिए. पंक्चुअल का मतलब है जिस वक्त जो काम करें, जैसे हमें भोजन अपना समय समय पर करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, ये भी एक पंक्चुअलिटी में ही आती है. वी शुड रियलाइज द फैक्ट दैट हेल्थ इज वेल्थ. और हमें ये चीज़ महसूस करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए इस बात का कि हमारी सच्ची पूंजी क्या है, हेल्थ ही है. हेल्थ है तो हमारे पास वेल्थ है, अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ नहीं है. इसका दूसरे हिसाब से मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ. अगर हम हेल्दी हैं तो हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं और अगर हम हेल्दी नहीं है तो हमारी जो है लाइफ में कामकाज के दौरान बहुत से हर्डल्स आएंगे, मुश्किलें आएंगी जिसे हमें फेस करना होगा. सो दैट इज द गुड थिंग. इफ देयर इज अ हेल्थ देयर इज वेल्थ. जहाँ अगर स्वच्छ जो है इंसान है तो वहाँ आपके पास प्रचुर मात्रा में धन दौलत भी मिलेगी. ए गोल्डन प्रिंसिपल टू एंजॉय गुड हेल्थ. और एक जो है स्वर्णिम जो है इसका तरीका जो है एक अच्छी हेल्थ के लिए वो है इज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज. एक जो गोल्डन प्रिंसिपल है लाइफ का एंजॉय करने का हेल्थ के बारे में, तो ये बताया गया है जो नॉर्मली हम इसको कहते हैं, यूजुअली ये बहुत ही सही बात है कि जल्दी सो और जल्दी उठो. ऐसा करने से इंसान जो है हेल्दी होता है और उसका जो है पास पैसे आते हैं, वेल्थ मिलती है और वो एक बुद्धिमान भी बनता है. सो वी शुड अवॉइड इंडल्ज इज बैड हार्मफुल हैबिट. और हमें उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी बुरे आदतें जिसकी हमें लत पड़ जाती है
और बुरी बुरी आदतें जो हमें नहीं करनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज करना चाहिए। We should avoid smoking and taking harmful drinks like coke, टी, etc. और इन चीज़ों के साथ साथ बुरी आदतों के साथ साथ हमें जो है स्मोकिंग, धूम्रपान और बहुत से ऐसे पेय पदार्थ होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, हमारे शरीर को नुकसानदायक होते हैं, हमें उन्हें भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल टी और कोक का दिया हुआ है, यानी कि चाय और कोक को भी हमें जो है हमें अपनी लाइफ में आदी नहीं बनाना चाहिए। We should not take care while eating sweets and snacks from बाजार। और उसके साथ साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार से लाए गए मिठाइयाँ और स्नैक्स जो हम आज आजकल जो है लगभग सभी बच्चों को ये चीज़ें पसंद है बाजार की, तो इनमें एक जो है लिमिटेशन होनी चाहिए, हमेशा नहीं, कभी कभार तो हो जाता है, नॉट ऑलवेज। सो स्टूडेंट, in this video today I just explain, and in the same thing more I will explain in the next video. So इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया है इसे अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल की तरह इसे अपनाइए और देखिए, यू विल डेफिनेटली सी इन योरसेल्फ द डिफरेंस दैट it will definitely work. So student, be in habit and make the principle of this health is wealth. So student, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।